طرف سے آپ سب کو سلام جی مرکز بات کر رہا ہوں مرکز سے تو میں آج کے کلام کے لیے خدا کی تصویر دیکھوں گا اور دعا کروں گا اگر اس عظیم عالم مطلق آسمانی باپ تجھے تھا تو جو ہے تو جو آنے والا ہے اے میرے خدا میں تیرا دل کی تھاک رنج سے شکر گزار ہوں آج اس دن اس وقت اس لمحہ کے لیے خدا کہ تو نے ایک دفعہ پھر خدا ہم سب مہربانیوں کو خدا ایک جگہ خدا جمع کیا تاکہ خدا ہم تیری حضوری میں جھک سکیں اور تیرے میٹھے اور جلالی کلام کو خدا خدا آج کے تمام تر کلام کے لیے خدا ہم تیری حضور خدا منتیں کرتے ہیں خدا کہ عظیم خدا تو اپنے خادم کو چھو اور بلیس کر خدا عظیم خدا آج کا جو بھی خدا تیرا بنتا اے خدا آج کا تیرا پاک کلام تھا ہمارے درمیان رکھے خدا تو اپنے خادم کو چھو اور بلیس کر خدا تاکہ عظیم خدا جب تیرا خادم خدا اے عظیم خدا تیرے پاک کلام کو پڑھے تو خدا اس کے اندر خدا تیرے پاک کا مسا کام کر لے خدا اے عظیم خدا وہ اپنی سوچ اپنے خیالات سے نہیں بلکہ تیرے پاک کے مسا سے خدا تیرے پاک کلام کو تیرے بیٹے تیری بیٹیوں کے درمیان رکھے تاکہ عظیم خدا آج کے پاک کلام کی وساست سے خدا ہماری زندگیوں میں خدا ایک نئی روشنی پیدا ہو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں خدا تاکہ عظیم خدا ہمارے لیے آج کا قدام خدا آج کے خدا زندگیوں میں ایسا کام کرے خدا کہ ہماری زندگی خدا ابھی اور اسی وقت خدا تبدیل ہو جائے اور عظیم خدا تمام تر سننے والے اعتباریوں کو خدا تو خدا لینا تاکہ عظیم خدا وہ کلام کو سنے اور کے دلوں میں جگہ دے سکے خدا عظیم خدا اسی طرح تمام تر جماعت کو تو خدا ہیل کر یسوع کے نام میں مانگتے سنا اور میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے لکھا تھا کوشش کریں گے کہ کلام کو اس کے بعد دیا جا سکے سو میری گزارش ہوگی خدا کے عظیم خادم سے جن کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے ہم بہت زیادہ برکت پاتے ہیں اور ہمارا گھرانہ بہت زیادہ برکت پاتا ہے اور ہم جب بھی وہ کلام کو پیش کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے کچھ سیکھتے ہیں جو سے کہ وہ اپنے مائنڈ کو میوٹ کریں اور ان کے حضور میں کلام مقدس کا بیچ کو بولیں آمین آمین ہم سب مل کر خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے دوبارہ ہمیں موقع بخشا ہے نئے دن کے مطابق نئی غذا درکار ہے تازی اور نئی غذا درکار ہے جو خداوند نے ہمیں مہیا کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں سننے والے کان دیکھنے والی آنکھیں اور پرکھنے والا دل عطا فرمائے یہ سب کچھ یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں آمین اور بھائی اشرف کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بہتری کے لیے اور میری تندرستی کے لیے اور میرے بولنے کے لیے انہوں نے طاقت کی دعا مانگی تھینک یو بھائی کلام شروع کرنے سے پہلے ہم چند باتیں نصیحت کی اپنے درمیان میں پیش کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کرنتھیوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے ہفتے ہم نے کون سا باب پڑھا تھا آپ بتا سکتے ہیں آمین 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 بیٹے تھینک یو اور ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے یا ٹھیک نہیں کہہ رہی ٹھیک کہہ رہی ہے آمین بڑی اچھی بات ایک لکھی ہے جو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں 12ویں باب کی 31ویں آیت اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو ضرور کھولیے گا اگر نہیں ہے تو اٹس اوکے ایسی بھی کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں پڑھا جائے گا سننے کے لیے اور اگر
समझने के लिए सुनना है आपने तो जरूर उस पर गौर खौज कीजिएगा। 31वां आयत में लिखा है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब मैं पूछूंगा कि उम्दा तरीका खुदा ने हमें पौलुस रसूल के जरिए ग्रंथियों को जो बताया है वो हमें भी बताया है, तो वो क्या है? ठीक है ना? आमीन। मोहब्बत है, और मैं बहुत सी चीजें रखता हूं, ठीक है, सिर्फ एक चीज नहीं रखता जो खुदा है। तो मैं हर चीजों से जो मेरे पास हैं वो सारी की सारी नाकिस और बेकार हो जाती हैं। ठीक है, यही इस 13 चैप्टर में बताया है। क्योंकि अगर मैं खुदा को साथ नहीं रखता, खुदा के दरमियान में नहीं रहता, या खुदा मेरे अंदर नहीं रहता, खुदा मुझे अपना चर्च नहीं कहता, तो मेरे पास जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी नाकिस और बेकार हैं। ठीक है ना? यही बात कह रहे हैं ना, क्योंकि मोहब्बत खुदा है, खुदा मोहब्बत है, सिंपल। तो अब मैं खुदा की बात करूंगा, जीसस की बात करूंगा कि जीसस मुझ में है, तो फिर मुझे हर चीज वो मुहैया करती है जो नहीं है। और मेरे पास क्या चीज है जो बेकार है? मेरे पास तीसरी आयत में लिखा है नबूवत है, मेरे पास भेदों और कुल इल्म की वाकफियत है, और मेरे पास ईमान है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यीशु नहीं है। इज दैट राइट? यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है ना? बोलिएगा, टाइम में जाया कीजिएगा। यही पढ़ा था, ठीक है ना? तो हमने यही सीखा कि मेरे पास यीशु जरूर होना चाहिए। और जब यीशु है तो मुझे ये 5वीं आयत बहुत पसंद आई थी, 5वीं और 7वीं आयत, 5वीं, 6ठी, 7वीं आयत। लिखा है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। 14 बाब में इसी के बारे में बताया गया है जो यहां लिखा हुआ है 5वीं आयत में। क्या लिखा है? अपनी बेहतरी नहीं चाहती, नाजेबा काम नहीं करती। ठीक है, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। और खास बात 7वीं आयत में, जब अपनी बेहतरी नहीं चाहेगी तो 7वीं आयत जो उसके रिफाइन करती है, बताती है, वो इन सब बातों को मुकम्मल कर देती है। क्या कहती है? सब कुछ सह लेती है। जब मैं अपनी बेहतरी नहीं चाहूंगा, दूसरों की बेहतरी चाहूंगा, तो सब कुछ वो सह लूंगा, जो लोगों के इल्जाम, लोगों की बातें, लोगों का मुझ पर दबाव डालना, लोगों का मुझे नीचा करना, लोगों का मुझे गुनाहगार कहना, लोगों का मुझे कहना कि ड्रामेबाजी करता है, लोगों का बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं सह लेता हूं। और वो क्यों सह लेता हूं? क्योंकि जीसस मेरे पास है, मोहब्बत मेरे पास है। इज दैट राइट? तो ये हमने सीखा था बातें। और फिर 11वीं बात का जो मेन टॉपिक है हमारा 14वीं आयत में, 14वें बाब में, वो है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बच्चों की बातें
तर्क कर दी, ठीक है। अब इसकी अब दुनियावी तौर पे मिसाल लें, जो कि इमसाल की किताब उसके 24वें बाब में उसकी 3री आयत में, और इमसाल की किताब उसके पहले ही बाब में यह लिखा है। क्या लिखा है? अब माँ की तालीम और बाप की तरबियत। माँ की तालीम क्या होती है कि माँ की तालीम, जब बच्चा गीला होता है तो उसे सूखे में डालती है और खुद गीले में रहती है, ताकि बच्चे को ये तालीम, ये एजुकेशन हो जाए कि गीले में नहीं रहना बल्कि सूखे में रहना है। वरना वो, अगर उसे तमीज नहीं होगी तो वो पड़ा रहेगा। तो सीखता कहां से है, तालीम कहां से मिलती है? माँ से। और वो एज क्या है? वो 1 से लेके 5 कह लें, या 1 से लेके 10 कह लें, या 1 से लेके 12 कह लें। ये बच्चे पे मुनस्सर है कि उसने सूखे में कैसे रहना है, उसने अच्छी जगह में कैसे रहना है, उसने क्या अप्लाई करना है। और फिर बाप का काम शुरू हो जाता है भाई और बहनों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो बाप का है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, उनमें बहुत से मैं देखता हूं कि बाप का किरदार जो है वो वैसा किरदार नहीं अदा किया गया जैसा करना चाहिए। तो बच्चे क्या निकले? बेकार निकले। मां की तालीम तो मिल गई, अब बाप का क्या फर्ज है, उसी को कनेक्ट करता हूं। अगर बच्चा गीला है और वो सूखे में चला गया, लेकिन बाप ने ये पूछना है कि भाई या बेटे या बच्चे या दोस्त, मुझे पहले सबसे ये बता कि बिस्तरा गीला कैसे हुआ, तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू डरता है, तू खौफ करता है, तुझे कोई मुश्किल है, या तेरे जिस्म में कोई प्रॉब्लम है, क्या बात है कि मां ने तुझे सूखे में डाल दिया, लेकिन अब मैं पूछता हूं कि तू गीला कैसा हुआ? ठीक है। और इस तरह ये बातें जो हैं उसे तरबियत देती हैं कि गीला होने से पहले तूने करना क्या है। गो टू द वॉशरूम, ओके, एंड आफ्टर दैट come to a right place. So there are so many circumstances what he had already learned from mother, and then who's going to apply the good things who had learned from mother? Who will apply? Father will force him to apply that. यही बात है कि हमें आज खुदा जोर देता है कि हमें किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बड़ा अच्छा कल मैं सुन रहा था मैसेज पादरी लतीफ साहब का, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही जो बहुत काबिल गौर है। फर्स्ट थिंग, listening. You should know the Father is telling you what you have to listen and what you have to apply. बाप जो बताता है कि तुझे सुनना क्या है और तुझे अमल क्या करना है, या मां बताती है कि तुझे सुनना क्या है, बाप बताता है कि तुझे उसे अमल कैसे करना है। अगर बाप ने अमल किया होगा तो वो बच्चे को बता सकेगा, अगर बाप ने अमल ही नहीं किया तो बच्चे को कैसे बताएगा। इसलिए बाप जो बाप हैं
माँ बाप हैं उनके लिए भी ये सबक है और बच्चों के लिए बहुत जरूरी सबक है। क्या बताया था भाई साहब ने, भाई लतीफ ने, जो कि मैं भी दोबारा रिपीट करने लगा हूं उसी बात को। लिसनिंग स्किल, whether it's good or bad, I'm just talking about listening skill, builds your good thoughts. जो लिसनिंग स्किल है, सुनना, और कहां से सुनना और क्या सुनना, आपके ख्यालात को बिल्ड करता है, आपके ख्यालात को पैदा करता है। आप अगर अच्छे कलाम सुना है तो अच्छे ख्यालात पैदा होंगे। The listening skill, first of all, we have to build a skill which is listening, not hearing. Hearing is a different thing. Listening, और वो क्या करता है, अच्छे थॉट, अच्छे ख्यालात देता है। And thoughts build actions. यही कल भाई साहब ने बताया था, thoughts build actions. और जो ख्यालात हैं वो रद्द अमल में बदल जाते हैं। जैसे ख्याल होते हैं, फिर इंसान उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है कि यार मैंने ये कल सोचा था, या परसों सोचा था, या रात को मुझे ये ख्वाब में नजर आया था, या ये कुछ भी हुआ था, या किसी ने बताया था मुझे, तो मैं इसको अप्लाई, एक्शन तो करके देखूं। एंड एक्शन बिल्ड्स द नेचर। अब नेचर में उसमें आ जाती है, दोबारा दोबारा एक्शन बिल्ड करने से उसमें नेचर, वो नेचुरली, जैसे व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न how to drive, first of all you bring prospects, and after that you go on a practice, and after the practice, lot of practice, you know where is first gear and second gear and third gear and fourth gear, you automatically go, you don't see properly to the prospects that I can see now. मैं देखता हूं कि ये पहला गियर कहां लगेगा, प्रॉस्पेक्ट पे नहीं देखते आप, बुक में नहीं जाते, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो इस नेचर बन जाती है। एक्शंस बिल्ड नेचर्स, एंड नेचर बिल्ड्स, जो कुदरत है वो क्या करती है, वो खुदावंद का घर बनाती है, द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये बातें जो हैं हमारे दरमियान में बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कलाम मुकद्दस में से 14 बाब। हमने देख लिया कि 31वीं आयत में 12वां बाब उसकी 31 आयत में लिखा, बड़ी नेमतों की आरजू रखो। तो यहाँ पे दो बातों का ध्यान बड़ा जरूरी दिया गया है। एक और दूसरी आयत कौन पढ़ सकता है, जिसने लिखा हो वो पढ़ दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें पॉइंट्स हैं, पैशन ऑफ लव, दूसरा पॉइंट है स्पिरिचुअल डिजायर, एंड थर्ड पॉइंट लव एनेबल द प्रोफेसीज। जी पढ़िए। 14 बाब 1 से 2। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इस की नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना करता है वो पॉजिटिव बातें नहीं करता, इसलिए इसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपने रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। और कलाम के पढ़े और खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू बहन, सो काइंड ऑफ यू। अब यहाँ पे जो बेगाना जुबान को बुरा नहीं कहा गया, लेकिन बेहतरी क्या है आगे हम देखेंगे। सबसे पहले पैशन होना चाहिए किसका, लव का, यीशु अल मसीह का, के तालिब हो, मोहब्बत के तालिब हो। I should have a passion that how I can preserve, how I can conceive. When you conceive something, then it grows into your body, and when it's grown into your body,
then it's applied to other people, and other people show how you conceived and how you give birth, and after the birth what the fruit is going to give you in nourishment and how good fruit it is. तुम्हारा फल जो है वो कैसा होगा. तो इस तरह तालब के, और खास कर जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टीवी होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, इट्स नॉट बैड, ठीक है, तो खुदा हमें देता है. और अगर हम यस्सु के तालिब हैं तो खुदा हमें क्या देता है, तो हमें रूहानी नेमतों से नवाजता है. और रूहानी नेमतों से नवाजने के लिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं भेद की बातों को जानूं, जो भेद की बातें हैं, तो फिर खुदावंद प्रोफेसी देता है. अब प्रोफेसी में और गैर जुबान बोलने में क्या फर्क है? ठीक है, नेमतों की आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जबान में बात करता है वो आदमियों से नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता. अब मैं ये ना कहूं कि द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन टंग्स he is not spiritual, but what is the difference between that? The difference is that he is talking directly to God and God is understanding him and he understands God's. ठीक है, but the difference ये है, कौन पढ़ेगा 3 और 4 आयत? जी मैंने लिखा, मैं पढ़ती खुदा के कलाम को. खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है. जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है. जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है. खुदावंद का शुक्र हो. तो मैंने क्या समझा, कौन बताएगा? क्या समझा मैंने? डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ आई अंडरस्टैंड? यस, गो अहेड. जी अगर हम गैर जुबान में बात करते हैं तो उससे हमारी तरक्की होती है. अगर हम कलीसिया की तरक्की चाहते हैं तो हमें नबूवत करनी चाहिए. It's so simple, isn't it? Why we understand now how simple is it? खुदावंद ने हमें कलाम बड़ी आसानी से दिया है कि हमें समझना क्या है. ठीक है, अब ये नहीं कि मैं जुबानें ना बोलूं, लेकिन जुबानें जरूर बोलूं, लेकिन उसमें दूसरों की तरक्की के लिए प्रोफेसी करूं कि जो मैंने कहा है, खुदा इस जमात में जो लोग इस बात से मुंसलिक हैं और वो ये कर रहे हैं, वो ये ना करें, क्योंकि उनके लिए आगे जो बुराई है वो ये रखी हुई है. दैट इज कॉल्ड प्रोफेसी. और जो कर रहा है उसके लिए बरकतें ये रखी हुई हैं, जो मुकाशफा हमें बताता है आगे. तो खुदावंद का कलाम तो हर जगह से, हर तरीके से, फाइनेंशियली, मॉरली, कैरेक्टर वाइज, प्लेस वाइज, हर हालात में, हर तरीके से आगाही करता है. लेकिन इस चैप्टर में उन दोनों बातों का बताया गया है. पैशन ऑफ लव रखो, और पैशन ऑफ लव के बाद हमारी डिजायर क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए स्पिरिचुअली पावर, क्योंकि स्पिरिट ही हमें आइंदा की बातें बताती है, और आइंदा की बातें बताने जब बता देती है तो हमें उन बातों को कन्वर्जन के तौर पर दूसरों में शामिल करना जरूरी है. और अगर नहीं किया तो आई एम नॉट अ प्रीचर, आई एम नॉट मैन ऑफ गॉड, आई एम जस्ट वांटेड टू प्रीच. मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं लेकिन मैंने किया नहीं. दैट्स व्हाट पॉल सेज. मैं चाहता हूं लेकिन मैंने किया नहीं.
हाँ, मैंने बड़ी बड़ी जगह के बहुत जगहों पे प्रीच भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वहां पे कुछ समझा नहीं। तरीकेकार वही चला आ रहा है, 1947 से लेकर आज तक तरीकेकार वही चला आ रहा है। कौन बदले हैं? वो बदले हैं जो खुदावंद के कलाम को इस तरह समझने के लिए सुनते हैं, और वो बदले हैं जिनमें खुदावंद यीशु मसीह कायम है, और वो बदले हैं जो आरजू रखते हैं कि मैं भेद की बातें जो हैं वो बयान करने के काबिल हो जाऊं, और अगर मैंने भेद की बातें नहीं बताई तो ना मैं बदला हूं और ना वो लोग बदलेंगे जो सुनते हैं। राइट? अब आते हैं अनेबल किसे कहते हैं, मोहब्बत कैसे अनेबल करती है उस प्रोफेसीज को। जब हम डाउनलोड करते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो फिर वो हमें इजाजत देता है कि ये खोल सके, कोई भी बात खोल सके। जैसे मीडिया प्लेयर्स का प्रोग्राम जब हम डाउनलोड करते हैं तो फिर वो तस्वीरें खुलती हैं या कोई वीडियो खुलती है, अगर डाउनलोड नहीं करते तो नहीं खुलती। सेम थिंग इज गोइंग टू टेल अस ऑन 5th। कौन पढ़ेगा? चले मैं पढ़ता हूं, ये एक ही आयत है। लिखते हैं, अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला इससे बड़ा है। दैट्स द डिफरेंट। अनेबल कर देती है। मोहब्बत क्या करती है? वो प्रोफेसी पैदा करती है। लेकिन अगर मैंने सही सुना है तो then it build action, and when my acts are how matter whatever it is, तो then it's build nature। तो इस तरह जो है दूसरों की तरक्की के लिए जो है वो ज्यादा बेहतर है। अब कौन पढ़ेगा? आगे हम देखते हैं, आगे मिसाल दी है जो बच्चों की 11वीं आयत में, तेरा बाप 11वीं आयत में दी है। इस तरह यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी है। एक तो जो इंसान बनाता है, इंसान जो चीज बनाता है उसे समझता भी है कि वो उसमें फर्क क्या है, और जब खुदा चीज बनाता है तो उसमें वो समझता है कि वो फर्क क्या है, और वो फर्क जो है वो इंसान को भी देता है। जैसे बच्चा, जवान, बुजुर्ग, 3 हिस्से। और यहाँ पे जो 6 आयत से लेकर 9 आयत तक बयान किया गया है वो हमारी बनावट हम समझने के लिए। कौन पढ़ेगा? मेरे पास 3 मिनट रह गए जी। भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशवा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा? चुनाचे बेजान चीजों में भी जिनसे आवाज निकलती है, मसलन बांसुरी या बरबस, अगर उनकी आवाजों में फर्क न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाए? और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाजिया बात ना कहो तो जो कहा जाता है क्यों कर समझा जाएगा? तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में खा कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हैं, उनमें से ओके जी बोलिएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, ये जरूर कहिएगा। आमीन। तो क्या सुना? अब यहाँ पे फिर क्लियर करते हैं। यहाँ पे नबूवत के बारे में भी कह देते हैं, यहाँ पे मकाशफा की बात में कह देते हैं, यहाँ पे तालीम के बारे में भी कह देते हैं, और यहाँ पे बेगाना बात, बेगाना जुबान की भी। सच बताओ, मोस्टली ऐसे होता है, बेगाना जबान वाला अगर तर्जुमा नहीं कर पाता तो मैं ये समझता हूं, और कलाम कहता है कि वो खुद नहीं समझा कि वो क्या बोलता है। वो बेगाना जुबान में जब दूसरों को नहीं बताता तो वो खुद ही नहीं समझा तो वो दूसरों को कैसे बताएगा?
अब यहां पे नबूवत की बात आती है कि चाहता हूं कि नबूवत करूं। एक नबूवत होती है रूहानी, एक होती है नबूवत जिस्मानी। जबकि इंसान को परख कर उसके बारे में बता देता है, पहले उसकी हिस्ट्री लेता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपकी हिस्ट्री लेता है कि आपको ये मर्ज हुआ कैसे, और आगे आइंदा में अगर आपने दवाई ना खाई तो क्या हाल होगा आपका। आप पैरालाइज हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपका दिल खराब हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी। ठीक है, तो वो नबूवत की गई जिस्मानी के लिए। और तालीम जो मां से मिली और जो तरबियत बाप से मिली वो तो बेकार हो गई। अब वो समझाते हैं जो हमारी बनाई हुई चीजें हैं। कौन सी हैं? मसल बांसुरी मैंने बनाई, और जब बांसुरी में और बरबत में और तुरी में मुझे फर्क नहीं पता चलता तो मैं बांसुरी और बनाने का बेकार हुआ मेरे लिए। ये बता रहे हैं वो। और मैंने जब वो बजाई, बांसुरी बजाई, तो वो किसी जो जानने वाला, पहचानने वाला, वो कहेगा भाई आप तो तुरी बजा रहे हो। तो इस तरह मतलब बहुत जरूरी बात है। और इस तरह दूसरों की बेहतरी नहीं होती। जो आठवीं कहता है अगर तुरी की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होता है। ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाजे बात ना कहो तो कहा जाता है, जो कहा जाता है वो क्यों कर समझोगे। हाँ, when God is not explaining me properly, when He is in me, and I claim that God is in me, and when the people they know how God is with him, man, he doesn't want to do that, पर ये चाहता नहीं है, ये करता नहीं है, क्या ये तो मेरी समझ में नहीं आई। इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत से जो चर्चेस हैं वो बंद हो जाते हैं, बहुत से कलीसियां टूट जाती हैं, क्योंकि ये कसूर समझाने वालों का है। क्यों समझाने वाला का? वो क्लेम करते हैं कि जीसस है, लेकिन जीसस ने अगर गलत बात बताई तो वो फिर फायदा ना हुआ उसका। बट वी आर लर्निंग हियर टुडे, and we are learning every day. So be careful what you are listening, and be careful what you are applying, and be careful what thoughts you are having it, and be careful what you are building. Are you building your kingdom or are you building the kingdom of God? Isn't that right? आगे आ जाएं, बड़ा लंबा हो जाएगा मेरा ख्याल है। मैं 2 मिनट आगे ऊपर हो गया हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू रखूं, वरना हम नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। क्या चाहते हैं आप? You want me to continue it or you want me to close it? Continue, please. ठीक है, कौन चाहेगा? और 2 आदमी चाहिए मुझे खुआई के लिए। God bless you. दुनिया में खाक कितनी ही मुख्तलिफ ज़ुबानें क्यों ना हो, उनमें से कोई भी बेमाने ना होगी। बस अगर मैं किसी ज़ुबान के माने ना समझूं तो बोलने वाले के लिए नजदीक मैं अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। बस तो जब रूहानी आरजू, नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजानी से कलीसिया की तरक्की हो, और इस सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ के तर्जमा भी कर सके। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अक्ल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। So it is clear. I don't have to explain all these things. You know better because you are educated people. खुदावन का रूह आप में बसा हुआ है। You don't want to entertain yourself. यहाँ हम कोई entertainment के लिए नहीं आए। We are not entertaining ourselves. We are training
ourselves, educating ourselves. So when we are educating it, then God is going. और फिर क्या लिखा है, वरना अगर तो रूही के हम करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी में आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या करता है। तू तो बेशक अच्छी बातों से शुक्र अदा करता है, मगर दूसरों की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि तुम में से ज्यादा जुबानें बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से पहले ये ज्यादा पसंद करता हूं कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कर दूं। Isn't it right? आखिर में कमजोर औरतों के बारे में लिखा है, वो आप जानते हैं, क्योंकि वो बातनी तौर से कमजोर होती हैं और कभी कभी खुदावंद का कलाम बहुत सख्त तरीके से पेश किया जाता है, जो कि कमजोरों के लिए बेहतर नहीं होता। और मर्द चूंकि जिस्मानी होते हैं, इसलिए खुदावंद ने उन मर्द और औरतों के लिए बयान किया गया है, जो कि 34 से 40 आयत तक है। लेकिन 22 से 23 आयत तक पढ़ दीजिए और फिर हम इसको खत्म करेंगे कि हमें करना क्या है। 22 से 33। बेगाना ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, पर नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सबके साथ बेगाना ज़बानें बोले और नवाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाए, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? बाकला के बड़े उसने जाने खुदा भी करेगा। आमीन। थैंक यू बहन, गॉड ब्लेस यू। लिखा है 26 में, बस ऐ भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जमा होना चाहिए या होता है। अगर होता है तो देन इज गुड। क्या? तालीम होनी चाहिए, मज़ामीर होने चाहिए, प्रस्तिश होनी चाहिए, और फिर क्या? मुकाशफा, कि आइंदा नबूवत, यानी कि आइंदा हमारे साथ होगा क्या, हम अगर किस पे चलेंगे तो क्या होगा, और भेद क्या बताते हैं। तो ये बातें जो हैं, अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो वो 2-2 या ज्यादा से ज्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। और अगर वो अच्छा, ये सारा है। फिर आखिर में हम देखेंगे जो 39 आयत में, बस ए भाइयों नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में आनी चाहिए, अमल में आए। तो हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम जब भी सबसे पहले खुदावंद के कलाम को, अपने यीशु को दिल में रख लें, ताकि यीशु हमें इन तमाम भेदों के बारे में बता दे, और फिर जब बता दे तो हम पास्टर साहबान की तरह हम दूसरों को बताने के काबिल हो जाएंगे। वरना वी विल बी कॉल्ड एज ए बेबी क्रिश्चियंस एंड somebody going to put a question on me, then I don't know how to answer it. तो इसीलिए जीसस ने कहा है, मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि तुम्हें लायक तौर से जवाब देना आ जाए। और मैं जवाब उसी वक्त दूंगा कि आई एम नॉट entertaining my life, I'm training my life, I'm listening well so I can act well. My thoughts build nicely, and when my thoughts are nice, then my acts are nice, and when acts are nice, then my nature is nice, and when my nature is nice, I'm going to build the house of God in people. Amen. Thank you. God bless you. आमीन आमीन। प्रेज़ द खुदा यीशु मसीह बहुत ज्यादा खुदा को बरकत दे। इसी तरह खुदा के अजीम कलाम को तो पहुंचाते रहे, और दुआ करते हैं हम सब कि हम इसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए खुदा के सीख सके, पढ़ सके, और उस बरकत को जो खुदा के जिंदा कलाम में लिखी है हम
सके, इसका तर्जुमा लिख सके और खुदा के को मांगे ताकि खुदा के नाम को इज्जत और सलाह देने के लिए मजीद खुदा के कलाम से अच्छे तौर पर सीख सके। खुदा यीशु जी आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आपके वसीला से हम सब ने हमारा बहुत ज्यादा बरकत पाई। मेरा ईमान के नाम पर आइडिस में बहुत ज्यादा बरकत पाई होगी। और दुआ के कलाम मुकद्दस की शुक्रगुजारी के लिए जो अजीम खुदा के खादम ने हम तक पहुंचाया, जिस तरह खुदा के रूह ने उन्हें गाइड किया। सो मेरी गुजारिश होगी भाई एल्बर्ट से कि वो जिंदा कलाम मुकद्दस की शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। तेरा शुक्र तेरे नाम की हम तमजीद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं कि जो तू भला है, तेरी शक्ति है और तेरी वफादारी आज पुष्ट रहती है। खुदा आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें अदा किया, खुदा शुक्रगुजार है। खुदा आज के तेरे पाक की बातों के लिए खासकर तेरे बंदा जिसके वसीला से हमने सीखा है, खुदा अपने पूरी दुनिया में खुदा को डाल कर और खुदा जितनी भी आज हमने मेरे पास की बातों को सीखा है, मैं भूलना जाए कि खुदा उनको अपने दिलों में जगह दे ताकि हम दिलों में जड़ पकड़े कहीं फंसने पर खुदा 100 खुदा को करने वाले बने। खुदा जो हमें अच्छे तरीके से खुदा इन बातों को हम समझे और सीखे। दुआ करता हूँ तो जमात के लिए खुदा की बरकत चाहते हैं। मेरे लोग हैं खुदा तुझसे प्यार करते हैं। खुदा उनके साथ हो जहाँ जहाँ भी हम तेरा दराज की मदद पहुँचता रहे। और खास तेरे व्यक्ति है खुदा भाई शिकार के लिए जो मुझे बर्दाश्त कर रहा है, खुदा तू अपने बेटे के साथ हो खुदा और अपने खुदा इसी तरह खुदा शुक्रगुजार है। जबकि खुदा हुई कि तुम खुदा तो अपनी बात खुदा बहाल किया खुदा जिस प्यार तूने हमें बांटा है रोज और मिलकर तेरे नाम को मैं हमारी दुआ